Good morning, students. It's your English class, and today we will start our second term courses of English Waves. And in second term course, first of all, we will start lesson 9, The Savior, from page number 68. जय हिंद छात्रों, आज हम लोग अपना सेकेंड टर्म शुरू करते हैं इंग्लिश वेब से। और इंग्लिश वेब के सेकेंड टर्म में सबसे पहले हम लेसन 9 द सेवियर पढ़ेंगे पेज नंबर 68 से। सो एवरीवन ओपन पेज नंबर 68, द सेवियर। तो बच्चों, सेवियर मीन्स क्या होता है आपको पता है? सेवियर हम कहते हैं रक्षक को। रक्षक यानी जो हमारी रक्षा करते हो। ओके स्टूडेंट, so first of all I would like to introduce about the characters of the story. So see here about all the characters of the story. There are mainly 4 characters in the story. First, a young girl. Second, her grandfather. Third, Tutu the savior. And fourth one, Tutu's mother. And except it, there were more 2 characters which come to attack the grandfather and the young girl. ओके स्टूडेंट, तो बच्चों कहानी शुरू करने से पहले मैं थोड़ा सा यहाँ कहानी का प्रीफेस आपको बता दूँ। ये कहानी है, एक लड़की अपने दादाजी के साथ अपने घर में रहती है और उस पर कुछ लोगों ने हमला कर दिया है और वो छिपी हुई है। तभी उसके एक पड़ोसी जो है वो उसके घर में आता है। पहले तो वो लड़की उसे भी हमलावर समझती है, लेकिन बाद में उसे ये क्लियर हो जाता है कि ये हमलावर नहीं है। ओके स्टूडेंट, सो सी firstly about the all main points of the story. See here, all points are written. First one is entering of Tutu and searching for the girl and grandfather or the old man. Second, the old man tried to stop his coughing fit but failed and Tutu saw both of them. Third, the girl requested him to leave her grandfather. Fourth, Tutu saved them by shutting the mouth of the girl and try to send her to his own home. Fifth, the girl care about old man and Tutu but left on the Tutu's assurance. Sixth, the girl reached Tutu home and wait for her grandfather and listened the noises of smashing things. And last one is finally her grandfather came safe. So here, starting with the first point, see the points: entering of Tutu and searching for the girl and grandfather or the old man. Now read your book. The sound come closer, come towards the bedroom. The door was kicked open and silhouetted against the drawing room light stood a tall young man, Tutu, the neighbor's son. He switched on the torch. Its beams searched through the dark room. It crept over the floor under the bed. It zigzagged over the walls towards the window, glided down the curtains, and travelled on. The young man took a step forward, then another. He did not speak a word, but the girl could hear his heavy breathing as he advanced closer and closer. तो बच्चों, कहानी की शुरुआत हो रही है। दादाजी और उसकी बच्ची जो है द यंग गर्ल, वो दोनों कमरे में छिप के बैठे हुए हैं। तभी कमरे पर के दरवाजे पर कोई लात मारता है और दरवाज़ा खुल जाता है और वहाँ से एक परछाई अंदर आती हुई दिखाई देती है, एक लंबे आदमी की, जो कि टूटू रहता है, नेबर का लड़का रहता है। वो अपना टॉर्च जलाता है, टॉर्च से चारों ओर खोजता है उन लोगों को, ऊपर नीचे, विंडो के पास, खिड़की में, दीवारों पर, सब तरफ अपने टॉर्च की लाइट फेल को घुमाता है, मगर वो लोग कहीं नहीं मिलते। और वो धीरे धीरे आगे बढ़ता है तो कुछ बोलता तो नहीं है, मगर उसकी सांसों की जो आवाज़ है वो लड़की जो है वो सुन रही होती है। उसे समझ में आता है कि वो कोई उसके पास आ रहा है। और तभी उसके दादाजी को खांसी आने लगती है, जो कि सेकेंड पॉइंट आपका है। द ओल्ड मैन ट्राइड टू स्टॉप हिज कॉफिंग फिट बट फेल्ड एंड Tutu द यंग मैन saw बोथ ऑफ देम। तो अब यहाँ देखिए, बिहाइंड हर द गर्ल felt her grandfather fighting off another coughing fit. Not now, grandfather, she prayed, not now. The old man put his hand over his mouth and attempted to choke off the loud sound, but in vain. The young man heard him. तो ग्रैंडफादर यानी दादाजी को खांसी का दौरा आता है, खांसी पड़वाने वाली होती है, वो खांसी आ रही होती, तभी उनकी जो पोती है यानी लड़की है वो प्रार्थना कर रही होती है कि नहीं दादाजी अभी नहीं, लेकिन वो अपनी खांसी को रोक नहीं पाते हैं और उनकी आवाज़ को जो है वो टूटू
सुन लेता है, और वो टॉर्च की लाइट जो है जब उनके चेहरे पर डालता है तो वो बिल्कुल उनकी आंखों की रोशनी खत्म हो जाती है, मतलब वो उजाले की वजह से देख नहीं सकते हैं। और वहाँ पे वो लोग उसको देखते हैं तो उन्हें विश्वास नहीं होता कि ये टूटू है। एंड हियर कम्स द थर्ड पॉइंट, द गर्ल रिक्वेस्टेड हिम टू लीव हर ग्रैंडफादर। तो वहाँ जो गर्ल है वो सोचती है कि टूटू भी हमलावर है और उसे पर हमला करने आया है, तो वो टूटू से रिक्वेस्ट कर रही है, कहती है टूटू, सी विस्पर्ड टूटू, hot angry tears swelled into her eyes, and before she knew what she was doing, she was out of the hiding place and hammering at his chest with her small fist, leave my grandfather alone। तो वो अपने छिपे हुए स्थान से बाहर निकल के आती है और उसकी आंखों से आंसू बह रहे होते, उसे नहीं पता कि वो क्या करने जा रही है, मगर वो दौड़ के आती है और टूटू के छाती पर अपने मुट्ठी से हैमरिंग करने लगती है, मतलब उसे मारने लगती है और कहती है कि मेरे दादाजी को छोड़ दो, मेरे दादाजी को छोड़ दो। नाउ आफ्टर दैट कम्स द फोर्थ पॉइंट, टूटू सेव्ड देम बाय शटिंग द गर्ल्स माउथ एंड ट्राइंग टू सेंड हर हिज ओन होम। तो अब यहाँ नेक्स्ट पेज देखिए, लिखा हुआ है, सी सॉफ्ट विथ अ स्विफ्ट movement of his arm, the young man caught the girl and clamped a tight hand over her mouth. Then he kicked the furniture, overturned the coat, and smashed the lamp. Drawn by the noise, turmoil, two men appeared in the doorway. What is happening? One of them roared, have you got them? The girl held her breath, going limp in young man's arm. With his back to the door, Tutu shouted over his shoulder, nobody here, get upstairs quick, they must be upstairs। तो अब टूटू जो है वो उस लड़की को अपने पास पकड़ लेता है, उसके मुंह को दबा देता है ताकि कोई भी उसकी आवाज़ ना सुन पाए, और वहाँ फर्नीचर को तोड़ने फोड़ने लगता है, चीज़ों को उलट पुलट करने लगता है। तब उसकी आवाज़ सुनाकर जो दो हमलावर रहते हैं वो वहाँ आते हैं और उससे पूछते हैं कि क्या वो वहाँ है कोई। तो वो जवाब देता है, नहीं नहीं, यहाँ कोई नहीं है, आप ऊपर जाओ और ऊपर खोजो। आफ्टर दैट वो दोनों आदमी जो होते हैं जम्प्ड बैक टू अवॉइड द ट्रंक, वो दोनों ऊपर चले जाते हैं, और उसी मोमेंट में जो टूटू है वो उस लड़की को छोड़ता है, अपने प्रेशर को कम करता है और उससे कहता है कि लिसन मी विथ द केयर प्रिंसेस, यू मस्ट गेट आउट ऑफ हियर एज फास्ट एज यू कैन, climb through the window and get into the service lane through the back door fast girl, get going, my mother is waiting for you, our back door is open। तो लड़की से कहता है कि तुम यहाँ से जल्दी से निकलो और पीछे के दरवाजे से, खिड़की के रास्ते से भागो, वहाँ पे मेरे घर पे मेरा बैक डोर ओपन है, वहाँ माँ मेरी तुम्हारा इंतज़ार कर रही हैं। ओके स्टूडेंट, तो इस तरह से टूटू उन्हें नहीं, उस लड़की को पहले वहाँ से निकालना चाहता है, लेकिन टूटू को उसकी और दादाजी की चिंता रहती है। दैट इज द नेक्स्ट पॉइंट, द गर्ल केयर्ड ऑफ टूटू एंड द ओल्ड मैन बट लेफ्ट ऑन टूटूज एश्योरेंस। वो लड़की जो है वो टूटू की और अपने दादाजी की चिंता करती है, लेकिन टूटू जब उसे भरोसा दिलाता है कि वो उसके दादाजी को सही सलामत लेकर आएगा तो वो वहाँ से निकल जाती है। देखिए यहाँ लिखा है, टूटू, ओ टूटू, क्राइड द गर्ल, टूटू बट यू व्हाट विल हैपन टू ग्रैंडफादर। तो वो कह रही है कि दादाजी का क्या होगा। तो यहाँ देखिए टूटू कह रहा है, आई विल टेक केयर ऑफ हिम, गो नाउ गर्ल रन। द यंग मैन फोर्स्ड हर एंड लिफ्टेड हर ओवर द विंडो सिल, रन फॉर योर लाइफ। तब टूटू उसे खिड़की के बाहर निकालता है और कहता है कि भागो, अपनी ज़िंदगी के लिए भागो। वो लड़की जो है वो वहाँ पीछे के रास्ते में आ जाती है खिड़की से बाहर निकलकर, मगर वो अभी भी सोच रही है कि उसके दादाजी का क्या होगा और टूटू का क्या होगा, ये बात उसके दिमाग में रन कर रही है। सी कुड नॉट लीव हिम, सी कुड सी, बट टूटूज वर्ड हैमर्ड इनसाइड हर हेड, रन गर्ल रन फॉर लाइफ। लेकिन उसके दिमाग में टूटू की बात चल रही होती है, जो टूटू बोला है कि भागो लड़की भागो, अपनी ज़िंदगी बचाने के लिए भागो। तो वो वहाँ से भाग जाती है। नाउ the next point, the girl reached Tutu home and wait for her grandfather and listened the noises of smashing thing। अब गर्ल जो है, the girl ran off, while running she tripped over rubbish and discarded kitchen waste, but
On she ran till she reached the narrow beam of the light that fell into the lane through the doorway. With trembling hands she opened the door and sobbing with exhaustion she fell into the arms of a waiting man. तो वो दौड़ के गली में आती है, किचन के सारे सामान को तोड़ते फोड़ते हुए गली में आती है और उस टूटू की माँ के पास पहुँच जाती है और वहाँ अब अपने दादाजी और टूटू के बारे में सोच रही होती है कि क्या होगा। वहाँ वो गुंडे जो हैं वो उसके घर में तोड़ फोड़ कर रहे हैं, चारों तरफ से सामान टूट रहे हैं और उसके कानों में उसकी आवाज़ आ रही है, मगर वो अभी भी अपने दादाजी का इंतज़ार कर रही है और यही सोच रही है। द गर्ल लुक्ड इंक्वायरिंगली एट द वुमेन्स फेस, वाई हैड टूटू नॉट कम, वेयर वॉज हर ग्रैंडफादर। तो लड़की अपने दादाजी के बारे में, टूटू के बारे में सोच रही है और टूटू की माँ की ओर देखते हुए कुछ ऐसा इंक्वायरी करना चाह रही है कि वो लोग क्यों नहीं आए। बट लेकिन सी द लास्ट पॉइंट, फाइनली हर ग्रैंडफादर केम सेफ। अंत में उसके दादाजी सुरक्षित वहाँ आ जाते हैं। तो उसके बाद यहाँ देखिए लिखा है, दे कुड हियर फुट स्टेप एंड लो विस्पर्स, देयर वर पीपल कमिंग। द गर्ल थॉट दैट मस्ट बी देम, was it Tutu and her grandfather? She held her breath but then rushed towards the door, pulled it open and people into the dark black lane. She could make out two figures not very far away, one leading the other, and then their low voice reached her ears. उसके बाद वो दरवाज़ा खोल के बाहर देखती है और दरवाज़ा खोल के बाहर देखती है तो दो लोग अंधेरे में से आ रहे होते हैं और जब वो पास आते हैं तो उसे पता चलता है, वो देखती है कि उसके दादाजी ही हैं। वी आर ऑलमोस्ट देयर ग्रैंडफादर, वी हैव मेड इट। और टूटू वहाँ दादाजी से कहता है कि दादाजी हम लोग घर पहुँच गए और अच्छा है कि सब कुछ ठीक है और आप जिंदा हैं। तो दादाजी भी कहते हैं, वी आर अलाइव माई डियर बॉय, थैंक टू यू, रिटर्न द ओल्ड मैन। दादाजी उस युवा टूटू को धन्यवाद देते हैं और अपनी बिटिया रानी को जानना चाहते हैं, पूछते हैं कि क्या तुम यही हो। और देखिए लास्ट में लिखा है, आर यू देयर बिटिया रानी। इस तरह से कहानी का सुखद अंत होता है। सो एवरीवन रीड द चैप्टर वंस अगेन, वॉच द वीडियो केयरफुली एंड डू ऑल एक्सरसाइज बाय योर ओन सेल्फ। ओके, दैट्स ऑल, थैंक यू।